हमारा माइंड बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है। हमें लगता नहीं कि हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। हमें लगता है कि जैसा हम सोचते हैं दुनिया वैसा है, या अगर हम चुपचाप बैठे रहे और अगर अपने काम पर फोकस करें, मतलब काम पर काम करें, तो बाहर से कोई अगर एक्सटर्नल वैलिडेशन होता है तो हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग सुनना चाहते हैं कि बाहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसके कारण हम लोग कभी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। स्पेशली मी स्पेशली मी मैं ज़्यादातर मुझे ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव करना हूँ चाहता था। पर जब भी इम्प्रूव करने की बारी आती थी तब इनके आलतू फालतू ये जो बातें हैं वो सुनकर मेरा फोकस, ध्यान भटक जाता था। ये लोग एज अ फीमेल, we cannot listen them, because whatever they will say, they whatever saying, this is not a power. Their statement as a female, their statement is powerless. Whatever they are is saying right now, this is not power. Whatever saying today or tomorrow or day after tomorrow, they will say okay. But but they were saying no, 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 but easily they converted into okay. But as a man, when man is decided this thing I will do, and apart from this, beside from this, I am not going to do anything, then I'm not understanding. They are talking with each other. I am not understanding. Literally, I am not understanding because of the lot of reason which I have no word to say, which I have not word to say, and I'm not really understanding what I really is and what I don't. मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ और ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जब भी कोई बाहर से वैलिडेशन देता है और ख़ुद को इम्प्रूव करने की बारी आती है, और चाहता भी हूँ कि खुद को इम्प्रूव करूँ, पर ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू लॉट ऑफ रीज़न मैं फेल हो जाता हूँ। और मैं आज अपनी बात नहीं बताना चाहता हूँ। आज माइंड को ओपन करके बात बताते हैं। कल उस आदमी को मैंने बोला कि $50 लूँगा मंथली तुम्हारा वेबसाइट का मेंटेनेंस, एंड आई विल मेक योर वेबसाइट। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, आई डोंट हैव दैट मच मनी, आई विल पे ओनली $25। इफ़ यू आर रेडी देन वी विल ओके। Then I did not say yet yes or not, but I will say yes, because first client is very important in the business. When you have 20 or 30 client, just start your business. Don't think, as soon as possible start your business. And I know doing business is quite very hard as we think, but business is that drastically change your personality. Everything will change with you, your human psychology, your how to money work, how to money works, and everything you will learn. Your personality, as I said, will develop. Lot of things you will learn after that. And as well as when you build the business, money will making money for you, and you will be enjoy. And this is why making business is quite profitable rather than doing 30-year or 20-year or 10-year job in the same place, because at that point you will not get experience. Your experience will be limited, you will earn money will be very less, and you will not enjoy a single life. You got only one life. Would you lose your life, or you will enjoy a lot? And this is only up to you.
because whatever you are thinking, whatever you are watching, whatever you are listening, whatever you are speaking, same thing you will be. Same thing you will be. People says the five people average you are the surround you. I don't have any people. I just watch YouTube video and they are my people. They are my five people, and they all are successful. And due to that reason, I made money, and right now I'm going to the success road. I'm going to the self journey, self improvement. I know it is not easy, but it is possible. It is not too simple. It is it is very hard, but it is possible. I'm getting pleasure by doing this. Why? Because this is a pleasure thing. Whenever I'm doing, whenever I I got pain in the temporary time, I used to think I got pain, but that pain I love a lot. In future, when I remember those things, I'm getting emotional by thinking my past past life. So what I'm trying to say with you, that do as many as hard work as you can, do a lot of hard work, and no matter how many times you got fail, you got failure, but you are young. Just let to understand, this is not failure, this is a game you are playing, and try to get successful before 24 or 22. And in and I will not say, I won't say enjoy life, I will say live the life. Because most of the people, they don't live life, they just pass life, what the person you want to be. अरे बहुत हो गया इंग्लिश। हम लोग देहाती मानुस है, हम लोग देहाती मानुस से हम लोग इंग्लिश में उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना हम लोग अपने लैंग्वेज में खुद को बता पाते हैं। और हमारा लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज। आई एम प्राउड टू हिंदी, बिकॉज हिंदी में मैं ज़्यादा चीज़ को बता पाता हूँ एज़ कम्पेयर टू द अदर लैंग्वेजेस। माई माई नेटिव लैंग्वेज इज़ बेंगोली, बट आई एम नॉट एबल टू explain as many things in Bengali because I don't know why. I can speak, I can only, I my good good storytelling language is Hindi. I will tell you what it is. First of all, सबसे पहले लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो लाइफ को जीना छोड़ दो। टाइम पे नहाना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना खाना, अच्छा खाना, ये खाना, टाइम टेबल को फक द टाइम टेबल, फक द टाइम टेबल, टाइम टेबल को फक कर दो, फक, आई फक द टाइम टेबल। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है उस पर फोकस करो। आई नो जब आप 10 लोग को मेल करोगे, 50 लोग को मेल करोगे, एक ग्रुप में बहुत सारे बंदे, और उसमें से आप 50 ग्रुप को मेल करते हो कि आई विल वर्क फॉर यू, आई वॉन्ट टू मेक माई पोर्टफोलियो, आई विल वर्क ओनली 10 पीपल। कोई रिप्लाई नहीं करते, एक दो बंदे आपको रिप्लाई करते हैं। वर्क फॉर देम, ट्राई डेली ट्राई करो, डेली कोशिश करो, काम करो, खुद को अपग्रेड करो। मेरे को एक बंदा मिला है, अब उसके लिए काम करके रहना है, आज ही काम करना है उसके लिए। और मैं लोगों को रिक्वेस्ट भेजूँगा, मुझे कुछ मिले ना मिले, आई विल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आई विल वर्क माई वेब स्टोरी एज वेल एंड माई कम्युनिकेशन। आई एम वर्किंग एवरी सिंगल डे। क्यों ये सब कर रहा हूँ? अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ सोऊंगा और सो के सिवा अपना टाइम को वेस्ट करूँगा, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे पता है ये हार्ड चीज़ जब मैं करूँगा तो मुझे अच्छा फील होता है, मुझे उस टाइम पे उतना अच्छा फील नहीं होता है। उस टाइम पे मुझे अच्छा फील नहीं होता है।
उसको कर लेता हूँ और उसके बाद कुछ भी खाने को मिलता है या फिर कुछ भी करता हूँ तब मुझे बहुत खुशी होती है। तब उस लेवल का प्लेज़र मुझे कोई अगर फ्री का गोल्ड फ्री का गोल्ड मेडल भी क्यों न दे, आई वॉन्ट बी हैप्पी एज मच एज आई डन द रियल आई गॉट द रियल success. I know this is not as easy. It is hard to do. It is quite hard. But if we think it is possible and it is easily done by you, I know it is hard. मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा है. आई नो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. इसके लिए विल पावर चाहिए. इसके लिए क्या चाहिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट आई डोंट नो एंड आई डोंट रियली नीड टू नो, वांट टू नो. आई डोंट नो. मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं कुछ भी बोल रहा हूँ. मैं कुछ भी बोल रहा हूँ. उसके पीछे मेरा मकसद है. मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे आई हैव इंटेंशन. वाई आई एम टेलिंग दैट? आई एम टेलिंग बिकॉज my life is hard and I want to deal with my life. My life is not easy and I don't want the easy life. Hard life is easy than easy life. Easy life is too boring. Hard life is so interesting. क्यों इंटरेस्टिंग है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ. मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ. अब मुझे किस टॉपिक पर बात करना चाहिए वो मेरे को पता है. मेरे को भी नहीं पता है. मैं ऐसे नहीं क्यों बोलूँ. मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. व्हाट आई हैड टू से, व्हाट आई हैव टू से. आज है दीपावली. बिफोर 2 years ago I used to enjoy a lot in Deepavali, but today I think I will not as enjoy a lot because इंजॉय करने भूल चुका हूँ. बट लाइफ इज़ इन्जॉयमेंट. अगर आप लाइफ को जी नहीं रहे हो तो आप लाइफ को काटोगे. तो क्या लाइफ को आप काटना चाहते हो या जीना चाहते हो? 90% लोग लाइफ को काट रहे हैं. वो लाइफ को जी नहीं रहे. और जी क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ को कैसे हैंडल किया जाए, लाइफ कैसे काम करता है. जब तक आपको लाइफ कैसे काम करता है वो पता नहीं होगा, जब तक आप जानते नहीं कि लाइफ को कैसे डील करें, तब तक आपको लाइफ में वो चीज़ नहीं मिल सकता जो आप चाहते हो. लाइफ को अगर आप कुछ भी चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा. क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत अंदर से होती है. जब तक आप अंदर से उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो वो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. अगर आपको किसी चीज़ में सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आपको हर एक चीज़ से उसको वाकिफ़ होना चाहिए. आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में सभी जगह पर आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए कि ये क्या है. अगर आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो तो उस पर नॉलेज तो होना ही चाहिए. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको नॉलेज चाहिए. नॉलेज नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. और उन नॉलेज को प्रैक्टिकली आपको लाइफ में अप्लाई करना होगा. एंड व्हेन यू अप्लाई दोज नॉलेज इन योर रियल लाइफ देन you got to know what the thing is work and what thing is does not work. And after that you have to choose what the right and what the wrong. And when you got the right thing you are doing continuously on it. लाइफ ऐसे काम करती है. लाइफ ऐसे बिल्कुल काम नहीं करती कि मैं अभी 10 पास कर लिया, +2 पास कर लिया, उसके बाद कॉलेज 4 साल में पढ़ा, 4 साल कॉलेज पढ़ा, उसके बाद पढ़ने के बाद जॉब मिला. और जॉब में ज़्यादातर लोग यही लाइफ में चाहते हैं. इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते. मतलब चाहते कि उनको वो जानते नहीं है
जानेंगे तब ना उनके अंदर डिज़ायर होगा। लोग आईफोन क्यों चाहते हैं? क्योंकि लोगों ने उनके अंदर डिज़ायर पैदा कर दिया है। तो जब तक आप खुद के अंदर न्यू न्यू चीज़ों को जानोगे नहीं, तब तक आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं। मैंने बहुत बहुत सी चीज़ों से खुद को एक्सप्लोर किया है। बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों से मैंने खुद को फैमिलियर किया है। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग किया तो मुझे समझ में आया कि एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। ये बहुत घटिया चीज़ है और पैसा बिल्कुल भी नहीं है और दिमाग बहुत लगाना पड़ता है और इसमें स्किल कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलता, बस आपका टाइम वेस्ट होता है। मैंने खुद किया है पर मुझे कुछ सीखने के लिए कुछ नहीं मिला। बाद में मैंने जब ब्लॉगिंग करना शुरू किया तब मुझे एक्चुअल चीज़ सीखने के लिए मिला। भले मैं उससे पैसे नहीं कमा रहा था पर उससे मुझे सीखने के लिए बहुत बहुत कुछ मिला। उसके बाद अभी मैं वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट ये सब कर रहा हूँ, तो इसमें भी मेरे को सीखने के लिए कितना कुछ मिल रहा है। मैं सीखना चाहता हूँ। सीखने क्यों चाहता हूँ? अगर आज मैं पैसे कमा रहा हूँ, कल पैसा मेरा डूब गया तो फ़िलहाल मैं इतना पैसा कमा लूँगा जितना मेरे को नीड है और फिर से मैं अपने एम्पायर को खड़ा कर लूँगा। पर अगर मैं वो चीज़ करूँ जिसमें स्किल चाहिए नहीं, अलग से मैं पैसा कमा लिया, उस एक बार पैसा कमा लिया उसके बाद और पैसे नहीं बनता है। मैंने बहुत सारे बंदे को देखा है, $100 $200 बना लेते हैं और उसके बाद बना ही नहीं पाते, क्योंकि इससे आप एक्चुअल स्किल सीखते नहीं हो। मार्केट में जो डिमांड होता है, ना तो आपका जो माइंड है वो वर्क करता है, ना तो आप मार्केट समझ पाते हो, ना तो कैश फ्लो समझ पाते हो। आपका दिमाग लॉक रहता है और इस कारण से आप कोई सा भी स्किल नहीं सीखते हो। और भले आप पैसा कैसे भी करके आपने पैसा कमा लिया 200 100 300, पर आप आपको पैसा कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगा। आप 3 महीने पैसे नहीं कमा रहे, 1 महीने पैसे कमा रहे, उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि चीज़ क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मुझे इतना समझ में आ गया, आई गॉट टू नो कि एफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट फॉर मी। इट इज़ फॉर मी if I already have money, then I can hire writer and I can rank my blog post on everywhere and I can earn money on it. But in the initial time, I don't know. I got to know this is not for me. For me, well story I am doing the similar thing I can do, and AdSense loading I can do. This is a skill I will learn, and Facebook marketing, Google marketing, and I can be Facebook manager, Google manager, or website designer, website developer. This is the thing I can do, but I can't. I do not wanted to learn the useless thing like affiliate marketing. I did this, but I did not get anything in my life, and this is why I don't like this most. मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, बारीकी से एक्सपीरियंस किया है। मुझे बारीकी से एक्सपीरियंस करने के बाद इतना समझ में आ चुका था कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट फॉर मी, this is not for me. Why? Because of lot of reason. I'm telling you why. I used to say I used to think this is not for me because इसमें मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, स्किल कुछ सीख नहीं पाते हो, ठीक है, और पैसा कम है। पैसा सूटेबल पैसा नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ पैसा में कंसिस्टेंसी नहीं है, पैसा में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, पैसा सूटेबल नहीं है, मतलब पैसा कोई रेगुलर नहीं है। इससे अच्छा तो मैं कुछ भी जॉब करूँ, मैं जॉब ही करूँ। इससे अच्छा आप ना तो इससे अपने ऑडियंस को भी बिल्ड कर पाते हो, आप हमेशा फेसबुक ऐड, गूगल ऐड का यूज़ करते हो और इसी में सिमट के रह जाते हो। ना तो अब आप अपना एजेंसी खोलते हो, आप आज 50,000 कमा रहे हो, 5 साल बाद भी आप 50,000 ही कमाओगे, क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं, आपको कुछ पता नहीं, आपका कम्युनिकेशन
डेवलप नहीं हुआ, एंड सो ऑन, एंड दिस एंड दैट इज़ हाउ मैं ऐसा बनना चाहता हूँ जो जिसको जो आता है या जो एक्सपीरियंस जो किया है वो अच्छे से उसको कम्युनिकेट करे। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर स्किल भी हो जो मैं किसी को सिखा सकता हूँ या किसी को टीच कर सकता हूँ या उससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। अब मुझे अपने स्किल्स पर प्राउड फील हो, क्योंकि मेरे जैसे स्किल बाकी लोगों के पास जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सेक्रीफाइस किया है। एंड दिस विल गेट मी सेटिस्फैक्शन। ऐसा मैं बनना चाहता हूँ। मैं अपना यूट्यूब चैनल भी खोलना चाहता हूँ और मैं बिज़नेस भी रन करना चाहता हूँ। मैं दोनों करना चाहता हूँ, लाइक टेक पार्टनर। मैं एक चीज़ में सिमट कर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब पर भी ग्रो होना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन एंड एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू ग्रो माई बिजनेस एज वेल। और मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ। और अभी अभी बारी आ रही है, अभी आ रहा है कि मैं कैसे करूँगा। मैं करूँगा जब मैं 99.9% चीज़ों पर फोकस हटा दूँगा। जैसे अभी के लिए मेरा फोकस हट गया था तो मेरा वीडियो ख़राब हो गया। मैं कितना अच्छा वीडियो बना रहा था, वो आ गई बग बग कर रही है और मेरा ध्यान, मेरा जो फोकस है वो हट गया था। पर मुझे समझ में आया कि ये सब फालतू चीज़ें, ये सब यूजलेस है एंड दिस इज़ नॉट यूज फॉर मी। देन आई मूव ऑन इट। मैं क्यों तब से इतना बकर बकर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये बकर बकर अभी मुझे लग रहा है, पर इससे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इससे जो मैं बोलना चाहता हूँ वो डेवलप होगा। और मैं अगर अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं अगर रियल सच में अगर पैसा कमाना चाहता हूँ, तो अगर कोई चीज़ मेरे को आता है तो उसका मैं कोर्स बना सकता हूँ। और कोर्स बनाने के बाद मैं उसको लोगों को सिखा सकता हूँ। लाइक जहाँ पे कोर्स सेल और बाय होता है, मैं यूट्यूब पर इसको अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड क्या कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब पर अपना ऑडियंस बनाऊँगा। मैं अपने कोर्स को अदर अदर वे अदर चीज़ों में इसको प्रमोट मतलब दे सकता हूँ। अपना पॉडकास्ट कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस को रन कर सकता हूँ, सब चीज़ एक साथ कर सकता हूँ। और इन सब में एक चीज़ ज़रूरी होता है और वो मेरा बिज़नेस, वो मेरा कम्युनिकेशन। अगर मेरे पास अच्छा कम्युनिकेशन है तो मैं जाने अनजाने एक अच्छे लाइफ की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं सभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। इट कुड बी अ पार्टनर, इट कुड बी मनी, इट कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग, इट कुड बी गुड फ्रेंड्स आई कैन मेक। बट अगर मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं है तो मैं स्टोरी टेलिंग नहीं कर पाऊँगा। मैं लोगों को अपनी बात पर अड़ा नहीं सकूँगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं लोगों को समझा नहीं सकूँगा। जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा आइडिया है, उसको मैं लोगों को बता नहीं पाऊँगा। मेरे पास आइडिया है, मेरे को फंडिंग मेरे पास आइडिया है और मेरे को फंडिंग चाहिए। फंडिंग इसीलिए चाहिए क्योंकि इस आइडिया को मुझे एग्जीक्यूट करना है और आइडिया बहुत अच्छा है। पर इसके बावजूद उस आइडिया से मैं अमीर बन सकता हूँ या बन जाऊँगा। इसके बावजूद मैं बन नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आइडिया को किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर एक्सप्लेन कर भी रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटलेस कॉन्फिडेंट मैं विदाउट कॉन्फिडेंट बात कर रहा हूँ तो लोगों को मेरे पर बिलीव नहीं हो पा रहे हैं। लोग मेरे पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये बंदा सच में क्या कर सकता है या नहीं। और मुझे खुद पर बिलीव नहीं हो रहा कि मैं सच में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मुझे अगर बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ और मैंने छोटा मोटा कुछ चीज़ किया है तो रियल कॉन्फिडेंट वो रियल कॉन्फिडेंट होता है।
और उस कॉन्फिडेंट डेंट और उस कॉन्फिडेंट को देख के सामने वाला भी मोटिवेटेड हो जाता है, उसको भी बिलीव हो जाता है कि बंदे में दम है, बंदा काम कर सकता है। अगर बंदे में स्पेंड किया जाए तो बंदा एग्जीक्यूट कर सकता है और वो आपको पैसा देंगे और उस पैसे से आप कुछ कर पाओगे। पर अगर आपके पास कुछ नहीं है, ना तो आपके पास नॉलेज है, ना तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना आता है, ना तो आपको इंग्लिश आता है, और आप अमीर बनना चाहते हो, तो आप बन सकते हो अपने सपने में। पर इन द रियल लाइफ आप सपना ही देखते रहोगे। सपने में ही जो आप परियों के बारे में सोचते हो, प्रिंसेस के बारे में सोचते हो, या अच्छे घर के बारे में सोचते हो, पैसे के बारे में सोचते हो, आप सपने में ही सोचोगे। आप इन द रियल लाइफ उसको कभी भी उसको हासिल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उसको करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। मुझे समझ में आ गया कि अगर 2020 से ही मैं अपने कम्युनिकेशन पर काम करता, मैं आलतू फालतू जितने भी सारे घटिया चीज़ में कर रहा था, मैं उसको बंद करके बस अपने कम्युनिकेशन पर काम करता, और तब से आज तक मैं अगर वीडियो ही अपलोड करता, तो आज तक मेरा मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल चुका होता, या हाँ सिल्वर प्ले बटन मिल चुका होता, और मैं यूट्यूब से पैसा भी कमा रहा होता, और मेरा कम्युनिकेशन और अच्छा होता। मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको मैं अच्छे से लोगों के सामने एक्सप्लेन कर पाता। पर मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैं सोचता था। पहली बात, मैं पहले लेट उठता था। उठने के बाद ब्रश करने के बाद छत्तू पीता, पीने के बाद वही आलतू फालतू कंटेंट देखना शुरू कर देता। एफिलिएट मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन विदाउट लर्निंग एनी स्किल, मेक मनी इन वन डे, ये सब बेकार वीडियो देख के सारा मेरा माइंड ख़राब हो चुका था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लिटरली बता रहा हूँ। कुछ भी करता, पर कुछ एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा हूँ भाई, इससे मेरे को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं पता था और कुछ नहीं पता था, और कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। मेरे को बोलता था कि तू 12 पास हो जा, तेरे को मैं अपना जॉब लगा दूंगा। जैसे मैं अभी किसी को बोलूँ, अरे अमीर बनना है ना, 10 पास हो जा, मैं बना दूंगा। जब वो 10 पास हो गया तो उसको बोला ठीक है 12 पास हो जा, तब मैं जॉब में लगा दूंगा। अब वो 12 पास करके घर में बैठा हुआ है। अब वो बोलता है 12 पास में जॉब तो मिलेगा, पर जो मिलेगा ना, मिलना और ना मिलना एक ही है, क्योंकि पैसा बहुत कम मिलेगा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, काम भी उतना अच्छा नहीं होगा। उससे अच्छा, सबसे अच्छा है कि अगर अच्छा सैलरी चाहिए तो ग्रेजुएशन पास हो जाओ, ग्रेजुएट। अगर ग्रेजुएट हो जाते हो तो अच्छा पैसा मिलेगा और काम भी अच्छा होगा। चेयर में बैठे बैठे काम करना पड़ेगा, तो सबको लगेगा कि चलो इतना साल पढ़ा, और 4 साल पढ़ते ही है, क्योंकि उसको भी मेहनत करना नहीं है, उसको भी बस बैठे बैठे पैसे कमाना है। जो सब चाहते हैं खाली बैठे बैठे पैसे कमाना, कोई कुछ करना नहीं चाहता। वो भी सोच रहा है चलो 4 साल कॉलेज में मस्ती ही करते हैं, मस्ती पर 4 साल पूरा मस्ती किया। 4 साल अगर यूट्यूब में देता है तो कितना पैसे कमा रहा होता। 4 साल यूट्यूब में ब्लॉगिंग में अपने बिजनेस को बिल्ड करने में दिया होता, एट द सेम टाइम बाय डूइंग कॉलेज, तो कॉलेज तो कर रहा होता, पर बाकी लोग कॉलेज में कुछ करते नहीं बिसाइड्स फन। पर आप कॉलेज में फ़न भी करोगे हल्का, आप कॉलेज में एग्ज़ाम भी दोगे कम नंबर से पास होके, पर आप लाइफ में फोड़ रहे होंगे, लाइफ में वो चीज़ कर रहे होंगे जो बाकी बच्चे सोचेंगे भी नहीं। आपने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया, आपने अपना ब्लॉगिंग कब का शुरू कर दिया, बिज़नेस शुरू कर दिया है, क्लाइंट आ रहा है
और क्लाइंट बढ़ रहा है, आपने अपना कोर्स सेल करना शुरू कर दिया, आपने वेबिनार लेना शुरू कर दिया, आपका यूट्यूब चैनल बिल्ड हो गया, आप कितना कुछ ट्राई कर रहे हो जिससे आप कितना ग्रो हो रहे हो। ये चीज़ वो लोग नहीं करेंगे, ये चीज़ कभी कभी भी वो लोग यूट्यूब चैनल शुरू नहीं करेंगे। और अगर चैनल शुरू भी कर लेंगे तो उस पर विद द कंसिस्टेंसी वीडियो नहीं बनाएंगे, अपलोड नहीं करेंगे, क्वालिटी नहीं लाएंगे, वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे। उनको उनका पर्पस होगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसे के पीछे जब तक वो भागते रहेंगे, और भागेंगे ही, क्योंकि अभी उन पर प्रेशर आ चुका है कि पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। तो ऑब्वियसली बात है, वो यूट्यूब पैसे कमाने के लिए करना चाहेंगे, पर जब वो पैसे कमाने के लिए जब वो फोकस करेंगे तो वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो वीडियो एडिटर हायर करे या अच्छे थंबनेल बनाने के लिए उनको हायर करे। तो बात क्या होगा, बात वही होगा जो होना नहीं चाहिए। बात होगा कि लाइफ में उनका लाइफ में फक हो जाएगा, फक 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 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लाइफ में लोग कुछ कर नहीं रहे थे, 4 साल ऐसे निकाल दिए। अब जो बंदा बोले कि उनको 4 साल बाद जॉब में लगाएगा, वो खुद ही जॉबलेस हो चुका है। वो अभी बोल रहा है कि अरे भाई मेरे जॉब नहीं, तेरे को कैसे लगाएंगे, मेरे को जॉब खोज ही नहीं दे, हम मेरे को जॉब लगेगा तो तेरे को बताएंगे। और अगर उसको जॉब है भी तो वो बोलेगा कि अभी सीट खाली नहीं है, सीट खाली होगा तब बोलेंगे। वही आपको बोलेगा कि अलग अलग चीज़ों में ट्राई करो ना तुम, तो क्या फ़ायदा हुआ 4 साल फ़न करने का। ऐसे भी तो वो फ़न करता, कोई बात नहीं। मैं बस इतने कह रहा हूँ कि 12 तक आपने अच्छे से पढ़ाई किया, इट इज़ ओके, बट 12 के बाद जो आपका 4 साल होता है उसको ऐसे ही वेस्ट मत करो। 4 साल में इतना मेहनत करो जितना आज तक आपने कभी नहीं किया, जितना आज तक पढ़ाई में आपने नहीं किया उससे 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करो अपने बिजनेस में, अपने ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने ब्लॉगिंग पर, अपने बिजनेस पर, अपने ब्लॉगिंग पर, अपने बिजनेस पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने कम्युनिकेशन पर, क्योंकि यही चीज़ है जो तुमको पैसा बना के देगा, तुम्हारे अंदर वैल्यू बना देगा, तुमको एक वैल्यूबल मैन बना देगा। तुम अगर वैल्यूबल होगे तो तुम लोगों को वैल्यू दे पाओगे। और सारा खेल वैल्यू का है। जितना वैल्यू तुम लोगों को दे पाओगे उतना ही वो आपको पे करेंगे। और अगर आप वैल्यूबल, पहले मैं आपको बता दूं वैल्यूबल चीज़ क्या है और वैल्यूबल चीज़ क्या नहीं है। जो सब कर पाते हैं, जो कि करना इजी है, वो वैल्यूबल नहीं है। जो बहुत कम लोग कर पाते हैं और करना हार्ड है, करना रेयर है, या करना हार्ड है और कम लोग कर पाते हैं, उसको वैल्यूबल बोलते हैं, उसमें पैसा है। पर ऑब्वियसली बात है कि जो सब नहीं कर पाते, जो करना हार्ड है, वो सच में सीखना करना हार्ड ही है, तब ना कोई कर नहीं पाते, तब ना कोई अमीर नहीं बन पाता है लाइफ में, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो चीज़ सच में हार्ड रहता है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया। उन फील्ड में कितने लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वैल्यू है तब ना पैसे कमा रहे हैं। अगर वैल्यू नहीं हो तो पैसे कैसे कमाते हैं? तो बोलने का क्या मकसद है? बोलने का मकसद है कि उनके पास वैल्यू है। और वैल्यू कैसे आया? वैल्यू तब आया जब उन्होंने खुद पर काम किया, जब कठिन टाइम था तब अपने आप पर काम किया, जब सब बोल रहे थे कि भाड़ में जाए, आई डोंट नीड इट, आई डोंट वांट इट, तभी उसने काम किया, तभी उसने खुद को बेटर बनाया। मैं अपनी स्टोरी आपको एक बताता हूँ। मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मैंने 10 साल हिंदी मीडियम की पढ़ाई किया, फिर 2 साल मुझे हुआ मेरे प्राइवेट कॉलेज में जाते हुए।
मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इंग्लिश सीखना है. आई डिसाइडेड दैट आई want to learn English. I want to talk in English. I want to write and I want to read everything I want to learn in English. What I did, मैंने खुद को झोंक दिया कि मुझे तो इंग्लिश सीखना है. कि अगर मेरे सामने कोई CBSE बोर्ड या फिर ICIC बोर्ड या फिर कोई भी बच्चा आए जिसको अच्छा फैसिलिटी लाइफ में मिला है मेरे के मुकाबले, पर मेरे को अच्छा फैसिलिटी से मैं उससे बीट नहीं होऊंगा. मैं इंग्लिश से उससे बीट हो जाऊंगा और इंग्लिश के कारण मैं हमेशा खुद को दोष देता रहूँगा कि यार वो तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा, उसको तो लाइफ में कितना कुछ प्रोवाइड किया, लाइफ में कितना कुछ प्रोवाइड किया गया, पर मेरे को तो कुछ नहीं किया गया. मैंने कुछ नहीं सोचा. मैंने 11वीं क्लास में ही इंग्लिश में मैंने सब कुछ लिखा. इंग्लिश में मैं सच बता रहा हूँ कि इंग्लिश में मैं पहले कुछ लिख नहीं पाता था. मैं क्वेश्चन आंसर कुछ मैं बता दूँ कि हम लोगों का 2 से 10 क्लास तक क्या होता था और क्या होता अभी भी आ रहा है. आधा आपका ग्रामर होता है और आधा आपका क्वेश्चन आंसर होता है. ठीक है, मैं कभी भी क्वेश्चन आंसर पर फोकस ही नहीं करता था क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं होता था. मुझे समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो मैं आज तक 10 क्लास तक मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर को स्किप करता आ रहा हूँ. मैं उसको रटता था कि राम इज़ गोइंग टू द होम. आफ्टर दैट ही गॉट अ प्राइज एंड हिज फादर कॉल्ड हिम. Ramesh, what you got? Ramesh said, I got a prize from school, and after that both of them went to their home. इसको मैं 100 बार 200 बार 300 बार रिपीट करते जा रहा हूँ जब तक ये माइंड में वही चीज़ रिपीट मोड में ना घुस जाए. और एग्ज़ाम में सब भूल जाता था. मैं क्वेश्चन आंसर हमेशा स्किप करता था. मैं हमेशा ग्रामर में फोकस करता था कि कैसे भी करके ग्रामर में मतलब मेरा हमेशा था कि इंग्लिश में मेरे को कैसे भी करके बस जस्ट पास होना है. हम लोगों का 26 नंबर पासिंग नंबर था. तो मैं सोचता था कि जो हम लोग को पैराग्राफ मिलता था और पैराग्राफ कुछ ऐसा था कि हम लोगों को ना पढ़ने आता था ना समझने आता था, ना तो पढ़ने आता था ना तो समझ में आता था. हम लोग खोजते थे कि क्वेश्चन क्लास में क्या लास्ट में क्या है और उस पैराग्राफ में क्या है जो मैच कर रहा है, और जो मैच कर रहा है वही उसका आंसर होगा. और वही उसका आंसर ज़्यादातर केस में होता था. और कभी कभार क्या ये मेरा कितना 7 8 9 तक ही, मतलब 9 बोलो या फिर 7 8 तक ही ठीक था. मुझे नंबर भी मिल जाता था. पर 9 10 से ये हार्ड हो गया. 9 10 से ऐसे नहीं हो कि जो सिमिलर है वही आपका आंसर होगा. आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका आंसर दे सकते हो. पर 8 9 में मैं वाट लग गया. मेरा पासिंग नंबर भी नहीं आता था. हमेशा 26 से कम आता था. नंबर ही नहीं आता था. हमेशा लाल दाग ही मेरे को मिलता था. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई लाइफ में अगर ग्रो होना है, लाइफ में मतलब कहीं पर भी जाना है तो इंग्लिश चाहिए. इंग्लिश इज़ नीडेड. तो मैंने उसके बाद से इंग्लिश वर्ड सीखना, इंग्लिश ग्रामर सीखना, इंग्लिश का पूरा माँ बाप बहन खानदान एक कर दिया. जितना ग्रामर, जितना कुछ टेंस हो, जो भी कुछ हो, डज, डू, डज, वॉज, वॉर, had, have, has, helping work, पैसिव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सबका माँ बहन एक कर दिया. मैंने इतना डीपली इसको समझा कि मुझे समझ में आ गया. अभी मुझे समझ में सब कुछ आ चुका है.
हालांकि वर्ड्स का प्रॉब्लम होगा, पर आई अंडरस्टैंड। और इतने वर्ड्स को भाई कॉपी खरीदता, कॉपी को फाड़ फाड़ के इतने वर्ड्स को लिखता, उसको याद करता, और ऐसे कर करके मेरा इंग्लिश इम्प्रूव हो चुका था। 11 क्लास में मेरा इंग्लिश में आया 72%। 72 आउट ऑफ द 100 आई गॉट 72। आज तक मेरे को 26 से ज़्यादा कभी नहीं मिला। 26 या 25, मतलब मेरे को 26 अगर मिल जाता था तो मैं पूरा खुश होता था कि भाई, अरे भाई पास हो गए, मज़ा आ गया। पर फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गॉट 72 नंबर आउट ऑफ द 100 इन इंग्लिश। आई वॉज सो हैप्पी। And in class 12 I got 80 number out of the 100. I got 92, but I did not get because of some reason. I will tell you why. I skipped some of the question because of lack of time. But if I did so, I got the 90 plus 90 number. It is okay. नंबर से कुछ मतलब नहीं है। नंबर इतना मिला कि वो दिखाता है कि मुझे इंग्लिश में आता है, मुझे इंग्लिश में लिखना आता है, बोलना आता है और पढ़ना आता है, ये बता दे रहा है। मैंने किसी का छापा नहीं, मैंने किसी का देखा नहीं, जो मैंने लिखा अपने से लिखा। और बाकी लोगों की देख रहे थे और मैंने किसी का नहीं देखा। मैंने खुद का पढ़ा, मैंने खुद का लिखा। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार ये लोग उनका देख रहे, अब मेरे से ज़्यादा नंबर आ गया। मेरा 72% नंबर आया। मेरा 72 परसेंटेज नंबर आया। और एक लड़की जो मेरी देख रही थी और पढ़ाई में मेरे से भी कमज़ोर है, उसका 80% उसका 80% आया। मेरे इतना कम क्यों आया? और बाकी बच्चे सब देखा देखी कर रहे थे, पर मैं देखा देखी नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई लाइफ में ऐसा क्यों होता है। पर अभी मैं खुश होता हूँ, क्योंकि मैंने तब मेहनत करने का जो नशा पैदा कर लिया है। अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है, सीरियसली पैसा कमाना है, लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको मेहनत करने का नशा होना चाहिए। अगर आप में मेहनत करने का नशा नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, हालांकि आप पैसा कमा सकते हो, पर आप अच्छे पैसे नहीं कमा सकते हो, क्योंकि अच्छे पैसे कमाने के लिए आपको अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। आपको अगर मेहनत करने से प्यार है, मेहनत करने का नशा है, तभी आप मेहनत करोगे। अदरवाइज आप हमेशा एज यूजुअल यू विल लिव। मुझे हमेशा से मेहनत करने का नशा था जब मैं 8 क्लास में था। हालांकि मुझे कोई दिखाता नहीं था और मुझे अच्छा नंबर भी नहीं आता था, पर इसके बावजूद मैं किसी का देखता नहीं था। हाँ, मैं देखता था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं देखता था, पर मैं ज़्यादातर चीज़ में मैं नहीं देखता था। मैं हमेशा ट्राई करता था कि खुद ही पढ़ना है, पर मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले। सैम्पल पेपर भी नहीं होता था कि भाई ये पढ़ना वो पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे वो हिंदी के हार्ड वर्ड्स मुझे समझ भी नहीं आता था, जो कि डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं होता है। इसीलिए आई थिंक बहुत सारा रीज़न है। ड्यू टू दैट रीज़न आई वॉज नॉट गेट गुड नंबर। बट ओके, लाइफ में अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ में सक्सेसफुल था तो आई वॉज सक्सेसफुल इन माई कॉलेज लाइफ, and right now I'm doing a lot of hard work so that in my future or in my upgrade version I want to be happy.
आई डोंट वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ। लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ का मतलब है कि तुम लाइफ को जी रहे हो, लाइफ में न्यू न्यू चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। दिस इज़ लाइफ। पर हम में से ज़्यादातर लोग लाइफ को ना तो जीते, लाइफ को ना तो जानते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं होता कि लाइफ क्या है। एंड दिस इज़ वाई सबसे पहले हमारे अंदर थिंक एंड ग्रो रिच में बुक में आपको बताया गया है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छा पैसा कभी नहीं कमा सकते हो। आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज के लिए ये इतना मार काट है, क्योंकि स्पेशल नॉलेज के लिए आपको दबा दौर मेहनत करना पड़ता है। और वो मेहनत वो नहीं करता है जो लाइफ में आलसी है। वो मेहनत वही करता है जो लाइफ में सीरियस है, जो लाइफ में रेगुलर काम कर रहा है, खुद को इम्प्रूव कर रहा है, जान रहा है कि मेरा वर्थ क्या है, मैं किस लिए बना हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक आप जानोगे नहीं, आप खुद को डेवलप नहीं करोगे। जब तक खुद को आप डेवलप नहीं करोगे, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते हो। लाइफ में सक्सेसफुल कौन बन पाता है? लाइफ में सक्सेसफुल वही बन पाता है जो लाइफ को जीता है, जो लाइफ को हर एक एंगल से देख चुका है। मैंने देखा है पैसे की प्रॉब्लम मेरे घर में, पर अभी मैं अपने फैमिली के साथ इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है। अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हो तो आप कुछ हो ही नहीं। जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में बात करते जा रहे हो। उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद उसके बारे में एज अ पोलाइटली डिस्कस करो इसके बारे में, ना कि मतलब इसके बारे में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है।